Hi everyone, this is Jenish Kota here and welcome to our video of accounts. So students, we are going to solve sum number 6 today, which is given to us on page number 416 of your 11th standard FIGC accounts CBSE textbook. And the name of the chapter is Financial Statement 2. That is chapter number 10. And before starting with the video, students, it's a sincere request to please subscribe to our channel, like the video, drop some comments, and also share the entire playlist, in fact, with your friends. Okay. And students, we're also running some online and offline tuitions for your CBSE 11th and 12th both. And of course, few more of commerce degrees also. So you're setting, no matter wherever you're setting, and if you're looking out to get some personal tuitions, you feel free to contact us. And we are doing amazing. I'm telling you all. Okay. चलो बच्चे लोग तो शुरू करेंगे. We are on sum number 6 and the page is 416. चलो. So let's discuss the sum first. Prepare a trading and profit loss account and balance sheet of Messrs Shine Limited. So now this is Shine Limited. So students, let me just write over here Shine Limited in the books of Messrs Shine Limited. Okay. Chalo, perfect. Now, so let's start the first one. What do we have? So students, in the question, they have given us trial balance and adjustment. What do we have to make? We have to make trading account, profit loss account, and balance sheet. Perfect. Let's start current asset. Sundry debtors current asset. Bad debts is profit and loss. Profit and loss. So it goes in profit and loss account, students. जो अमाउंट डेबिट में दिया वो डेबिट में ही जाएगा, जो क्रेडिट में दिया वो क्रेडिट में ही जाएगा. ओके. Trade expense is profit and loss. Printing and stationery is profit and loss. Rent, rates, and tax is also profit and loss. Freight is trading account, students. Now they will sales return. Sales return, students, क्या होगा? Less from sales. और मैं यहाँ पे students क्या कर दूंगा? मैं sales को टिक कर रहा हूँ because sales में adjustment है. Motor car. So motor car is fixed asset. Opening stock is trading account. Fixed furniture and fixtures again fixed asset. Purchase is trading. Drawings, students, अब drawings क्या आएगा students, आपको याद रखना है. Drawings less from capital करेंगे, वो हमारा कैपिटल से कम हो जाएगा. जितना ड्राइंग्स करो उतना कैपिटल कम हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट असेट एंड कैश एट बैंक इज माय करंट असेट अगेन. बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर्स आल्सो करंट लाइबिलिटी. Provision for bad debts, students, it goes in profit and loss, of course. So entire formula that you have to write of bad debts, it will come over here. Return outward. Now they have given, use the word return outward over here. Students, return outward is as good as, आप वहाँ पे लिख लो, return outward is my purchase return. Okay. So क्या करेंगे? Less from purchase करेंगे और आप लोग purchase को टिक कर लो because यहाँ पे adjustment है. Nice. Next after that, capital will go to liability. Discount, profit and loss. Interest received also profit and loss, and sales will go in the trading account. Nice. Moving forward to adjustment now. Closing stock. Closing stock is coming in all the sums, so आपको learn ही करना है. Trading account, credit side, balance sheet, asset side. Perfect. Depreciate करना है. Depreciate में क्या करेंगे students? Less from asset. जो भी depreciate में asset. And next is P&L debit side. Okay, because it is an expense, इसलिए P&L debit आएगा बच्चे लोग. ओके. तो यहाँ पे आपको मैंने P&L डेबिट लिखा है, आपको दिख जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ वीडियो को. सो स्टूडेंट्स, आपको टिक करना है फर्नीचर फिक्सचर पे टिक करना बिकॉज अब वहां पे एडजस्टमेंट है. मेक श्योर दैट यू डू द टिक मार्किंग प्रॉपर्ली. थर्ड वन, इट सेज फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 एंड मेक प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स. तो स्टूडेंट्स, जब भी ये बैड डेब्ट्स आएगा तो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स. ओके, दोनों में सेम ही होगा. एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स. लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स. ठीक है. चलो बच्चे लोग टिक करेंगे. हमें क्या करना है? अच्छा, बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं और डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है. मैं दो एडजस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे दो लाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. दो एडजस्टमेंट है एंड बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिख लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेप्रिशिएट चार्ज ऑन मोटर कार. अरे अलग से दिया है. चलो, मोटर कार में भी डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, तो जो मैंने नंबर 2 के लिए लिखा है वही नंबर 4 के लिए भी जाएगा. सेम. ठीक है. नंबर 2 में जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वही नंबर 4 में भी जाएगा, उसमें भी डेप्रिशिएट ही करना है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आप समझिए, ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस फ्रॉम कैपिटल ही होगा. एंड फर्म के लिए ये एक तरह से इनकम है. कैसे इनकम हुई स्टूडेंट्स? बिकॉज ड्राइंग्स बेसिकली फर्म ने ओनर को उधार दिया है, तो इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम होती है, इसलिए P&L क्रेडिट में जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आर आउटस्टैंडिंग. चलो टिक करेंगे. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस को टिक कर रहा हूं मैं. याद रखना आप लोग को. आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा ऐड होता है. मैंने बच्चों को काफी वीडियो में बताया कि अगर आउटस्टैंडिंग है कोई चीज तो वो उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? ऐड होता है. तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है.
एंड इट्स एन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब समथिंग विच इज पेंडिंग, पे करना बाकी है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इट्स लाइबिलिटी। एंड लास्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट वर्ड भी हमेशा लेस होता है, तो डिस्काउंट मतलब डेटर्स से लेस हो जाएगा। एंड दिस टाइम इट इज अ लॉस फॉर मी, इट्स लॉस फॉर मी, तो पी एन एल डेबिट साइड। तो स्टूडेंट्स मैं डेटर्स को यहाँ पे एक और लाइन कर रहा हूँ, डेटर्स में 3 लाइन है, आपको याद रखना है डेटर्स में कितनी लाइन है स्टूडेंट्स, 3 लाइन है। तो ये सम है स्टूडेंट्स, इसमें डेटर्स में एडजस्टमेंट, इसमें 3 लाइन आप लोग को याद रखना है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस में भी है, मोटर कार में है, फर्नीचर फिक्चर में है, परचेज और सेल्स में तो है ही है। ठीक है, ये आप लोग को इतनी चीजें याद रखनी है ताकि हम वहां पे लाइन छोड़ सके। परफेक्ट, तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सम डिस्कस करके हो चुका है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम नाउ। मैं सम को सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, चलो तो हम ये वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में सेट कर देते हैं। ओके, चलो लेट मी जस्ट चेक, ये कौन सा ईयर है, ईयर है 2000। ओके, ईयर एंडेड तो कुछ दिया ही नहीं, तो मैंने 2017 लिख लिया फिलहाल। चलो तो सम की शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स अभी। ओके, सम की शुरुआत करेंगे। मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले सनी डेटर्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सम की शुरुआत सनी डेटर्स से हुई है 1,00,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे सनी डेटर्स रैंडमली थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। सनी डेटर्स एन अमाउंट है ओके 1,00,000 रुपीज, जिसमें 3 एडजस्टमेंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे 5 लाइन छोड़ने वाले हो। बेड डेप्स, शुरू में ही बेड डेप्स आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बेड डेप्स का पूरा फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग को लर्न कर देना स्टूडेंट्स बेड डेप्स का फॉर्मूला, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेड डेप्स का फॉर्मूला क्या है, टू बेड डेप्स एड फर्दर बेड डेप्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, फर्स्ट एंड लास्ट हमें कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, बीच के 2 एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बेड डेप्स का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया है, 3,000 रुपीज दिया हुआ है। परफेक्ट, अब उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है। चलो तो टू ट्रेड एक्सपेंस, और ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट दिया है 2,500। ओके, 2,500 आएगा, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 5,000 रुपीज। नाइस। उसके बाद है टू रेंट एंड टैक्सेस, टू, अब इसमें एडजस्टमेंट रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, जिसका अमाउंट दिया हुआ है हमें रेंटेड से 3,450। ओके, आराम से आपको सारे अमाउंट को एकदम परफेक्टली लिखना है। फ्रेट दिया हुआ है, फ्रेट मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, टू फ्रेट। ठीक है, आपने देखा होगा सम शुरू करने के पहले मैं काफी सारा फॉर्मेट बना के रखता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग भी एग्जाम में जाकर वो फॉर्मेट बना सकते हो, बिकॉज उतना फिक्स होता है। चलो नेक्स्ट सेल्स रिटर्न है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर उन्होंने सेल्स रिटर्न वर्ड यूज किया है, तो मैं भी सेम वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 6,000 रुपीज दिया है। चलो ग्रेट, तो 6,000 रुपीज हमारा सेल्स रिटर्न हो चुका है। नेक्स्ट आफ्टर दैट मोटर कार है, यहाँ पे मोटर कार, और मोटर कार में स्टूडेंट्स कोई एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं लग रहा है मुझे, 25,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक 75,550, 75,000 रुपीज, 550, 75,550। ओके, फिक्चर है 15,500। चलो ठीक है, फर्नीचर फिक्चर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, अमाउंट है 15,500, बराबर ना। ओके, इसमें लाइन नहीं आएगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,500। परचेजेस दिया 75,000। ओके, तो परचेज आएगा 75,000। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स 13,560। ओ माय गॉड, सच अ वियर्ड अमाउंट। क्वेश्चंस लेस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिख रहा हूँ मैं, काफी डिफिकल्ट अमाउंट लग रहा है मुझे। 13,560। ओके, 13,560। इन्वेस्टमेंट 65,500, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया हुआ स्टूडेंट्स, मैं यूजुअली करंट एसेट और फिक्स एसेट के बीच में लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट 65,500। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, और अमाउंट आएगा कैश इन 36,000 और 53, 36,000 और 53,000। चलो हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड द क्रेडिट साइड नाउ। सबसे पहले यहाँ पे बिल्स पेएबल दिया है, तो चलो रैंडमली ऊपर से हमेशा स्टूडेंट्स आपको कैपिटल में कुछ लाइन छोड़ देनी है। अमाउंट है 85,550, 85,550, 80,550। नेक्स्ट आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स है 25,000 रुपया, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारे पूरे के पूरे बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में जाएगा। हमें ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो ये हमारा ओल्ड आरडी हो जाएगा। अमाउंट है 1,500 रुपीज।
नाइस। रिटर्न आउटवर्ड 4500, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है विच इज परचेज रिटर्न। वो लोग जो वर्ड यूज करेंगे हमें भी वही वर्ड यूज करना है, तो रिटर्न आउटवर्ड है तो हम भी रिटर्न आउटवर्ड ही लिखेंगे 4500। चलो माइनस करेंगे, 75,000 माइनस 4500 विल कम टू 70,500। कैपिटल दिया 2.5 लाख रुपए स्टूडेंट्स। चलो कैपिटल 2,50,000 दिया। अब 2,50,000 में से मैं 13,560 माइनस करूंगा, दैट कम्स टू 2,36,000 है ना। 14 माइनस के पहले 2,36 हो गया। हाँ 440 440। ठीक है, 0 10 में से 4 गया तो 14, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, फिर 4 में से 1 गया तो 3 बराबर। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट मैंने लिख दिया 2,36,440। डिस्काउंट रिसीव्ड अब क्रेडिट में दिया स्टूडेंट्स, जो अमाउंट डेबिट में दिया वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में दिया वो क्रेडिट में जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट कितना दिया स्टूडेंट्स हमें 3,500 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट दिया 11,260। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट सेल्स दिया स्टूडेंट, सेल्स है 1 लाख। ओहो सेल्स बहुत कम लग रहा है, 1 लाख थोड़ा ज्यादा कर लेते यार। चलो 1 लाख में से 6,000 तो वापस आ गया माल, वेरी बैड। तो अमाउंट आएगा 94,000। चलो क्या ही कर सकते हैं, पर ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया कंप्लीट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एडजस्टमेंट नाउ। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अब सारे एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, याद रखना। 35,000 रुपीज दिया क्लोजिंग स्टॉक का हमने 35,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और कहाँ आएगा बैलेंस शीट असेट साइड, तो यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। चलो 35,000, तो यहाँ पे हमारा एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, 35,000 रुपीज। सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्सर एट द रेट 5%। चलो फर्नीचर और फिक्सर में 5% है, और मोटर कार में भी एडजस्टमेंट है। ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स मोटर कार में हमारा एडजस्टमेंट है 25,000, अभी हमें पता चला है हमारी सुर्खियों से। लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। ये किसका फर्नीचर फिक्सर है स्टूडेंट्स, फर्नीचर फिक्सर 15,500, तो क्या है 15,500 इंटू 5/100, 0 कट, तो 5,25 टू कैरी 27 टू कैरी 5 तो स्टूडेंट्स अमाउंट 775 आ रहा है, 775। और स्टूडेंट्स मैं साथ ही साथ डेप्रिसिएशन नंबर में एडजस्ट नंबर 4 भी कर रहा हूँ, मोटर कार के ऊपर 10% है, तो चलो अभी साथ साथ में कर लेते हैं 10% मोटर कार पे। तो 25,000 तो 2,500, काफी इजी अमाउंट है 2,500, माइनस करेंगे 22,500। ये 10% वाला आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करना इतना इजी हो जाता है। तो 25,000 माइनस 2,500 22,500, पर अब ये वाला मुझे चेक करना होगा 15,500 माइनस 775। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, तो 14,725, 14,725 परफेक्ट। चलो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, दोनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। पहले फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट था तो मैं फर्नीचर लिख रहा हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा फर्नीचर फिक्सर के बाद आएगा मोटर कार, ठीक है। मोटर कार तो कितना था 775 अमाउंट था एक तो, और एक था 2,500, तो दोनों को प्लस करेंगे 2,500 और 775। मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, कितना 5,721 के लिए 3,275 स्टूडेंट्स, 3,275 3,275 परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया डेप्रिसिएशन वाला। तो हमने 1 2 और 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया। मूविंग फॉर टू द थर्ड वन, फर्दर बैड डेब्ट्स 1,000। चलो 1,000 फर्दर बैड डेब्ट्स, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स है तो यहाँ पे पहले लेस लिखूंगा, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या याद रखना है, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, कितना 1,000 माइनस करेंगे। व्हाट इज 1 लाख माइनस 1,000, इट कम्स टू 99,000। ओके, तो स्टूडेंट्स सेकंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, देखो यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स हो चुका है। अब नेक्स्ट 5% लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 5%। चलो ओके, लेस RDD एट द रेट 5%, और इसका 5% कितना आएगा, लेट्स सी 99,000 का 5%, तो 9,900 का आधा, 9,900 का आधा कितना होगा स्टूडेंट्स, 9,900 रुपया, उसका आधा कितना होगा, डिवाइड बाई 2, 4,950। ओके, तो स्टूडेंट अमाउंट आएगा 4,950, माइनस करूंगा इसको, अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है स्टूडेंट्स।
तो 99,000 माइनस 4950 0, 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 9 गया तो 0, और 8 में से 4 गया तो 4, तो स्टूडेंट्स 94,050 ओके फाइन, चलो ठीक है। ओके कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ सेकंड इफेक्ट डालेंगे, यहाँ पर हमारा न्यू आरडीडी है एक तरह से 4950 चलो इसको कंप्लीट करेंगे अब हम 4000, तो 8950 टोटल कितना आ रहा है तीनों का मिला के 3, देखो इन तीनों को मैं कर रहा हूँ प्लस 3 1 और 4, 8950, 8950, तो 8950 और माइनस करेंगे 1500 रुपया, 1500 9 से 5 का तो 4450 कितना आ रहा है 4450 ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा बेड डेप्स वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ एडजस्टमेंट नाउ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है 6%। ओके बच्चों लोग क्वेश्चन में ड्राइंग्स वर्ड कितना दिया था वो पहले देख लीजिए आप। ड्राइंग्स अमाउंट 13,560 दिया था। 13,560 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड बाय करेंगे 100, ठीक है। तो आप मैं बुक में कर रहा हूँ 13,560 इंटू 6/100, एक जीरो कट तो 135.6 इंटू 6 कर रहा हूँ, 6,36, 3 कैरी, 6 5 30, 3 कैरी, 3 18 21, 2 कैरी, 6 1 6 7 8, क्वेश्चन 813.6 आ रहा है। तो मैं इसको राउंड फिगर 814 ले रहा हूँ, ये मैं राउंड फिगर अमाउंट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो राउंड फिगर लूंगा यहाँ पर, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अमाउंट आएगा 814, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ 814, ठीक है। तो माइनस करेंगे अभी 2,36,440, 2,36,440 बराबर, -814 तो 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, अब 14 में से 8 गया तो 6 5, तो 2,35,626, 2,35,626। और स्टूडेंट्स ये हमारे लिए इनकम है, क्या इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल के राइट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 814। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने इतना पार्ट कंप्लीट कर दिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने कौन सा एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया है 5, हो गया 6, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग ₹200 ओके। ओ तो यहाँ पे एक लाइन थोड़ा छुट हमारा रह गया था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक लाइन अब ऐड कर देंगे। ओके मैं लिख रहा हूँ ऐड आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, और आउटस्टैंडिंग में कितना पैसा है ₹200 है, बराबर ना। ओके तो ₹200 है, इसको मैं लाइन कर रहा हूँ, परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3450 में मुझे क्या करना है, सिर्फ 200 ऐड करना है, तो कितना आएगा 3650। और स्टूडेंट्स ये मेरे लिए क्या करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग क्या वर्ड लिखा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, उन्होंने पूरा लिखा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो मैं भी पूरा वर्ड लिखूंगा। और ₹200 ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी हो गई एक तरह से, क्योंकि अभी भी पे करना बाकी है इसीलिए। नेक्स्ट आफ्टर दैट स्टूडेंट्स गोइंग टू द नेक्स्ट वन, डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हुआ है 2%। ओ माय गॉड, डेटर्स में ऑलरेडी इतनी तो मारामारी चल रही है भाई। चलो डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस, डिस्काउंट और कितना है स्टूडेंट्स @2%, ओके। तो कितना है ये 94,050 है, 94,050 बराबर ना, इंटू 2/100 क्या आएगा 940.5 इंटू 2, तो 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 0 तो 1 हो जाएगा, 2 4 8, 2 9 18, तो 1881 स्टूडेंट्स कितना आ रहा है अमाउंट 1881 आ रहा है, 1881। चलो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं 1881 से। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1881 लिख रहा हूँ, 1881 माइनस करना होगा अभी, कितना अमाउंट बचा अभी हमारे पास 94,050, 94,050, उसमें माइनस करेंगे 1881, तो 10 में से 1 गया तो 9, तो 4 बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, और ये कितना होगा 3, 3 में से 1 गया तो 2,
92,169 92,169 परफेक्ट। स्टूडेंट्स कितना आया? 92,169 आ गया हमारा आंसर। सेकेंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट, जब हम सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे हम लोग? पीएनएल डेबिट में डालेंगे। मैं यहाँ पे पीएनएल डेबिट में जा रहा हूँ। टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और कितना डिस्काउंट ऑन डेटर्स आया था स्टूडेंट हमारा अमाउंट? 1881 ठीक है, चलो ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कौन सा एडजस्टमेंट हो गया? हमारा डेटर्स वाला भी हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, सम को डायरेक्टली टैली की ओर बढ़ेंगे। लेट्स डू द टैली स्टूडेंट्स। मेरे पास पेन और बुक है, आई एम गोइंग टू डू इट विद दैट। सबसे पहले मुझे लगा ये 1,40,000 तक बन रहा है, 1,47,000, ये 94 और 35। तो स्टूडेंट्स मुझे डेबिट हैवी लग रहा है इस बार, ठीक है। 75 और 70, 1,45,000, 1,47,000, 1,47,250, और ये 500 और 550, 1050, तो 001 कैरी 300, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8, 1,48,300। तो स्टूडेंट्स अमाउंट आ रहा है 1,48,300। ये हमारा डेबिट हैवी आ रहा है स्टूडेंट्स, 1,48,300। तो यहाँ पे लिखूंगा 1,48,300। अब माइनस करेंगे इसमें से 94 और 35 कितना होगा? 94, 99, 99 और 30 कितना होगा? 1,29,000, 1,29,000। तो 300 तो आएगा पीछे पीछे, 18 में से 9 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1। तो स्टूडेंट्स 19,300 आ रहा है मेरा अमाउंट, 19,300। और ये 19,300 स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? ये हमारा बाय ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन है हमारा। तो 19,300 तो स्टूडेंट्स यहाँ भी लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 19,300। परफेक्ट, चलो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है ये देखेंगे हम लोग। पीएनएल में भी स्टूडेंट्स डेबिट ही हमें लग रहा है, 19,300 है। अभी सब प्लस करेंगे, ये कितना होता है? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11,950, 11,950 ऐड करेंगे सबको। और ये कितना है? 3,650, 3,650, 3,275, 3,275, और लास्ट 1,881, ठीक है। चलो ये कितना है? पहले सबसे पहले 6 हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 15 25, 2 कैरी। 5, 5 और 9 14, 14 20, 20 30, 3 कैरी। 10 13 16 19 20, 2 कैरी, 40,056। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो थोड़ा सा अमाउंट अलग आ रहा है, हल्का सा। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है ऑलरेडी वो 7,450 आएगा। कितना अमाउंट है वो? 7,4, 8 माइनस 1 गया तो 7,450, ठीक है। तो ये 7,4,550 है ना। तो 19,300, और ये 7 और 2 9 9 5 14,950, तो ये हो गया 14,950, ठीक है। तो 9 और 4 9 10, 10 और 4 14, 14 और 6 3,000 से बढ़ना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 43,056, 43,056, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख रहा हूँ 43,056 डेबिट हैवी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्रेडिट में भी लिखा हुआ 43,056। अब इतना सारा माइनस करना होगा हमें। क्या क्या अमाउंट है? 11 और 2 3, 14,000 ना। 11 और 3 14 होता है, 14,760, 14,760। और क्या? 814, 814, तो 4 7 15, 1 कैरी, 15,574, 15,574, ठीक है। तो 6 माइनस 4 क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा। अब 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 12 में से 5 गया तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2, 27,482। तो स्टूडेंट्स आ जाए 27,482। यहाँ लिख रहा हूँ 27,482। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है? बाय नेट लॉस। इसको ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट बच्चे लोग, दैट्स सो नाइस। 27,482, यहाँ लिखूंगा 27,482। और यहाँ करेंगे लेस नेट लॉस। चलो तो स्टूडेंट्स अब लेट मी कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? 2,35,000, 2,35,626, 626, उसमें से हमें क्या माइनस करना है स्टूडेंट्स? अभी हम लास्ट माइनस करने वाले हैं 27,482, 482। 6 में से 2 गया 4, ठीक है।
और 12 में से 8 गया तो भी 4, और 5 में से 4 गया तो 1, 144। अब 15 में से 7 गया तो 8, 2 में से 2 गया 0, तो 2,08,144, 2,08,000, 2,08,144। चलो अब सुनो इसमें क्या ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करना है। 28 और 25 कितना होता है, 28 85, 1,10,700, 1,10,700। तो 44844 आ रहा है लास्ट 3 डिजिट। ये है 8 है 1 है, 3,18,800। ओके। 500 भी है ना, तो कितना ऐड करेंगे, 200 और 500, 2,08,144 हो गया, 2,08,144 हो गया। इसमें 85,500 है और 25,000 है, तो 85, 1,10,700। हाँ, परफेक्ट। तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये तो 44 है। नाइस। तो ये जो बिल्स पेबल उसका अमाउंट आएगा 85,550 आएगा स्टूडेंट, अमाउंट 85,550। तो क्या हो गया ये, 80,550 और 25,000 और 200, तो 1,10,750 यहाँ पे 9, तो कितना आएगा, 3,18,894, 3,18,894, 894। चलो बच्चों लोग, ये सेम अमाउंट अब यहाँ पे भी आना चाहिए। तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट, एक बार मैं कैलकुलेट करके फाइनल कर लेता हूँ। पहले फर्स्ट अमाउंट है 22 और 14 कितना होता है, 22, तो 32, 36, तो 37,000, 37,000 225, 225, 37,225। चलो ठीक है। अब ये 65,500 है, 65,500 है, नो प्रॉब्लम। 92,169, 92,169, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 और 53 और 35, 36, 53, 36,000, 53,000 और 35,000, ठीक है। 36, 53 और 35, चलो ठीक है। 4 1 कैरी 9 और कितना है 8, 894, लास्ट के 3 डिजिट स्टूडेंट्स 894 आ रहा है, परफेक्ट। अब 7 और 5, 12, 14, 20, 28, परफेक्ट। 2 कैरी कितना आएगा अभी, 6, 9, 10, 11, 20, 20 और 8, 28, 28 और 3, 31, 3,18,000 स्टूडेंट्स एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है हमारा, 3,18,894, परफेक्ट अमाउंट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम होता हुआ कंप्लीट। तो बच्चे लोग प्लीज जाने के पहले 2 मिनट सुन के जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स इट वाज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द एंटायर वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो स्टूडेंट्स प्लीज शेयर कर लो वीडियो को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक, कमेंट भी कर लेना स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट बात, वी आर रनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशंस फॉर सीबीएसई पार्ट, सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू कैन ऑफ कोर्स कांटेक्ट अस। और नहीं तो फिर मैं आपके लिए वीडियोस तो बनाते जाऊंगा, कमेंट में बता दीजिए इफ यू वांट एनी मोर वीडियोस। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।